Good morning, dear students. Yesterday we have discussed about the topic check the correctness of the given relation by using dimensional analysis method. And by using this method, we can check the correctness of a given relation. For example, if we have a relation s is equal to ut plus half t square or t is equal to 2 pi and root L upon g, then by using this method, dimensional analysis method, we can check the correctness of this method. And for this method, we have discussed in previous lecture. In first step, we write down the dimension formula of all these given physical quantity, and in step 2, we put the value of all these physical quantities dimension formula into that given relation, and in third step we check if the left hand side of the relation is equal to the dimension formula of the right hand side, then we can say the given relation is correct. Today we will discuss about the topic third use of this dimensional analysis method. And third use of dimensional analysis method is we can derive a relation. With the help of this dimensional method, we can derive a relation of a given physical quantities. So, a very important numerical on this method is a body having mass m moving with a circular path. A body having mass m moving with a circular path of radius r with velocity v, then derive an expression for centripetal force F. A body having mass m moving in a circular path of radius r with velocity v, then we have to derive an expression for centripetal force. Why using this dimensional analysis method. क्लियर कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. उस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है. ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है. वी हैव थ्री क्वांटिटीज, मास, रेडियस एंड वेलोसिटी. देन बाय यूजिंग these mass, radius and velocity, we have to derive a relation for F. What's F? F is centripetal force. I have already explained in previous lecture. Centripetal force is a force that deviates a particle from its
लीनियर पार्ट टू सर्कुलर पाथ। एक ऐसी फोर्स जो किसी वस्तु को सीधी सीधी गति में जब वो मूव कर रही होती है तो उससे वो उसको गोल गोल घुमाती है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अ फोर्स दैट डेविएट्स अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स लीनियर पार्ट टू सर्कुलर पाथ। तो इसके बाद आप सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि कैसे हमें इसको करना है। अगर इस तरह का न्यूमेरिकल अगर हमारे पास आता है तो इस डायमेंशनल एनालिसिस मेथड को यूज करते हुए हमने किस तरह से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी से एक रिलेशन ड्राइव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, लेट मान के चलना है जो हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है m, इसका आपने m रेज़ टू पावर a कर देना है। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी रेज़ टू पावर a, सेकंड फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्वांटिटी क्या है, r है, r रेज़ टू पावर b एंड वेलोसिटी रेज़ टू पावर c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इस तरह के अगर न्यूमेरिकल आपके पास आते हैं तो आपने जो ड्राइव करना है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है जो डिफरेंट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इस न्यूमेरिकल हमारे पास जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, फर्स्ट इज मास, सेकंड इज रेडियस एंड थर्ड वन इज वेलोसिटी। सो लेट f is directly proportional to m raised to power a, r raised to power b and velocity raised to power c. Then f is equal to k m raised to power a, r raised to power b and velocity raised to power c. Now here is k, where k is dimensionless constant. k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्थान पर जब हमने इक्वल टू लगाया तो वहां पे हमने इक्वल टू के साथ के लगाया। ये क्या, के जो है दैट इज डायमेंशनल कांस्टेंट, बट ये जो डायमेंशनल कांस्टेंट है इट इज डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस डायमेंशनल एनालिसिस मेथड में देखा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन, उसी फॉर्मूले को अब हमने थर्ड मेथड में लगाना है। तो हमें पता है फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m l t माइनस 2। ये जो है इट्स डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। k जो है दैट इज डायमेंशनलेस। नाउ डायमेंशन फॉर्मूला फॉर m, we know that the dimension formula for m is capital M, what raised to power a, तो हमने इसका रेज़ टू पावर a लगा देना है। r क्या है, r का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, l होता है, l रेज़ टू पावर b, और वेलोसिटी का हमें पता है lt माइनस 1 होता है। तो ये रेज़ टू पावर कितना चला जाएगा, c, क्योंकि हमें पता है m रेज़ टू पावर a, m का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M, r इज लेंथ रेज़ टू पावर b, वेलोसिटी lt माइनस 1 रेज़ टू पावर c। अब आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, या इसको आप पहले अलग नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास mlt-2 है, उसको एज इट इज वैसे का वैसा लिखा। राइट हैंड साइड में आप देखिए m रेज़ टू पावर तो a है, ठीक है, इसके साथ कोई और m नहीं है, अकेला है, तो m रेज़ टू पावर a। और नेक्स्ट हमारा लेंथ है, लेंथ रेज़ टू पावर कितना है, b है, प्लस कितना है, l रेज़ टू पावर, ये भी l रेज़ टू पावर c भी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस c। और नेक्स्ट है हमारा टाइम रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, माइनस c, क्योंकि सिर्फ अकेला c है, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई c, दैट इट इज माइनस c। अब आपने क्या करना है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, हमने इनकी वैल्यूज को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ m, l एंड t कंपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड में m की वैल्यू क्या है, की पावर क्या है, और कंपेयरिंग द पावर, नॉट वैल्यू बट कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर ऑफ m, l एंड t बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, m रेज़ टू पावर 1 है, m रेज़ टू पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि इट इज m रेज़ टू पावर 1। और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, m रेज़ टू पावर a, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, क्योंकि a
वहां पे लिस्ट पावर हमारा, तो ये निकल गया। दूसरा हमारे पास एल पे आते हैं, तो यहां पे कितना है, एल रेस्ट पावर बी प्लस सी, बी प्लस सी हमने करा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एल रेस्ट पावर 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। और थर्ड के हमारा टी है, टी रेस्ट पावर माइनस 2 है, और यहाँ पे टी रेस्ट पावर माइनस सी है, हमने पावर को कंपेयर करना है, तो माइनस सी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 2 के बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, तो सी इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इस सी की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे, तो ए तो हमारे पास 1 रहेगा, लेकिन बी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 1 माइनस सी, और सी हमारे पास हमने यहाँ पे निकाला हुआ 2 है, तो 1 माइनस 2 चला जाएगा, तो बी इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो बड़ी टर्म हमारे पास होती है उसके साथ जो नंबर होता है, उसके साथ जो साइन होता है वही रहता है, तो माइनस 2 में से प्लस का बन गया तो माइनस 1 रहा, और सी हमें पता है कितना 2। तो अब हमारा निकल गया ए बी, ए इज इक्वल टू 1, यहां पे आप अलग से अब इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू कितना आया देखिए माइनस 1, एंड सी इज इक्वल टू 2, इस तरह से एबीसी हमारा आ गया। अब आप इसको नेक्स्ट, ये जो ए बी सी की वैल्यू है, अब आप इसको पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एबीसी निकल गया, पुट, अब आपने क्या करना है, पुट करना है वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इनटू इक्वेशन नंबर 1। आपने इक्वेशन नंबर 1 में अब एबीसी की वैल्यू को पुट करना है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, पुट करिए। एफ इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ए तो हमारे पास है ही है, के क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी है, और ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसका कोई डायमेंशन होता नहीं, तो ये के हमने वैसा का वैसा लिख दिया। और एम रेस्ट टू पावर अब ए हमें पता है कितना है, ए रेस्ट टू पावर ए इज इक्वल टू 1, तो एम रेस्ट टू पावर कितना आ जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 है तो उसको नहीं लिखते, अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसकी पावर 1 है। नेक्स्ट क्या है हमारा, आर है, अब आर रेस्ट पावर कितना है, आर रेस्ट पावर जो कितना आएगा माइनस 1 आएगा, क्योंकि बी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये बी है और ये हमने निकाला हुआ माइनस 1 है, तो आर रेस्ट पावर माइनस 1 रहेगा, बी के स्थान पर बी की वैल्यू पुट कर दी। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी रेस्ट पावर सी है, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो सी के स्थान पर हमने 2 रख दिया। अब इसको आप करके अरेंज कर सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, के एम बी का स्क्वायर, और इसको हम नीचे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, क्योंकि हमें पता है मैथमेटिकल एक ये टर्म होता है, अगर x रेज़ पावर माइनस 1 है तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं, तो इसलिए r रेज़ पावर माइनस 1 जो था हम इसको 1/r लिख सकते हैं। इस तरह से हमने r रेज़ पावर माइनस 1 को 1/r लिखा, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया क्या, f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r, एंड दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r जो है ये क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। Again I am repeating, centripetal force is a force that deviates a particle from its linear path to circular path। तो इस तरह से हमने इस जो थर्ड यूज डायमेंशन एनालिसिस मेथड का था उसमें हमने देखा, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन डायमेंशनल एनालिसिस मेथड we can use this method to drive different physical quantities into a relation. We can check the correctness of any given relation, and with the help of this dimensional analysis method we can convert one unit system into another. Thank you.